Namaste to all. Om Dhan Dhanvantaraya Namo Namaha. Myself Vaidya Kumar Veldandi, MD Ayurveda Samhita Siddhant, and a consultant at Ayucare Multi-Speciality Clinics, as well assistant professor at Sri Siddharameshwara Ayurvedic Medical College and Research Center, Bidar, Karnataka. We are going to see about Rutucharya, especially about Hemanta Rutucharya. Last month shared a view on Sharad Rutu, which is going to complete now. So now we will give a detailed information on Hemanta Rutucharya according to Ayurveda perspective about Ahar, food and Vihar daily activities to perform. In Ayurveda, the Brihatraya like Charak, Sushrut and Vagbhat as well Lagutrayis, Sharandhar, Madhav Nidhan and Bhav Prakash as documented concept of Rutucharya as a deep study. In Sanskrit or Hindu philosophy, Hemant Rutu consists the months of Agrahayan and Paushya. Likewise, in the Western or Georgian calendar correspond to mid-November to mid-January. That is also known as pre-winter season. We will see some key aspects of Hemant Rutu like weather. The rains are subsided and eventually air is cooler and dry. Nights are little longer and day is shiny sun with cool environment. Cultural significance in Hemant Rutu. Harvest season in many parts of India, Bharat, and people come together to celebrate the bounty of the land. Cultural tradition associated with traditional foods, clothing and custom that are unique to different region and communities. Auspicious time for spiritual growth and self-reflection. Festivals such as Hornbill Festival celebrated in the Nagaland as a cultural community festival, and Ran Utsav in Gujarat, Kochi Carnival Festival in Kerala, Winter Festival at Mount Abu, Rajasthan, Christmas all over the world, Makar Sankranti and Pongal in the month of the January, as also known as the Kite Festival or Uttarayana. And spiritual growth, some parts in India, Ayyappa, Kartika, Tirthas are done, and a 41 to 45 days celibacy is maintained, and Amma Devi Vratas was also performed for the spiritual growth and the self-reflection. Now we will see in Sanskrit terminology and in Hindi what says Ayurveda about the Hemant Rutucharya. The Sanskrit shloka details that Shite Shit Anil Sparsha Sanruddho Balinam Bali Pakta Bhavati Hemante Matra Dravya Guru Shamaha Sa Yada Nenadhanam Yuktam Labate Dehajam Tada Rasam Hin Astyato Vayu Shitaha Shite Prakupyete Tasmat Tushar Samaye Snigdha Amla Lavanan Rasan Audakan Anupamausanam Medhyanam Upayojayet Bileshayanam Mausani Prasahanam Brutani Cha Bhakshayen Madiram Shidum Madhu Cha Anu Pibe Naraha Ghorasani Ikshu Vikrutir Vasam Tailam Nai Odanam Hemante Abhyasyas Ushmanam Cha Yurna Yate Abhyanga Utsadhanam Murdinam Tailam Jantak Atapam Bajed Umigruham Cha Ushna Anushnam
गर्भगृहं तथा शीतेषु संवृत्तं सेव्यं यानं शयनम् आसनं प्रवर अजिनिक कषाये प्रवेणी कूतक स्तुतं गुरु उष्णवसा दिग्धदांगो गुरुना आगुरुना सदा शयने प्रमाधां पीनं विशालोपचितस्तनीम आलिंग्य आगुरु अदिग्ध अंगी सुप्यात समद अमंतन प्राकामं च निषेवेद मैथुनं शिशिर गमे वर्जयेद अन्नपानानि वातलानि लघुनि च प्रावातं प्रमित आहार मुदमंतं हीमगमे. Now I will explain this shloka in Hindi version also. Like हेमंत ऋतु वर्ण, शीतकाल हेमंत ऋतु में शीतल वायु के स्वाभाविक स्पर्श होने से रुकावट को प्राप्त बाहर ना निकल पाने के कारण बलवान व्यक्तियों की जाठराग्नि प्रबल शक्तिशाली हो जाती है. अतएव पाचकग्नि मात्रा में गुरु एवं द्रव्यों में गुरु आहार को पचाने में सक्षम हो जाता है. That's why in this season गुरु आहार कैन बी टेकन. वह बलवान जठराग्नि जब आहार रूपी उचित ईंधन को प्राप्त नहीं करता तब वह संदुक्षित दैट इज अग्नि शरीर के रस धातु को विनाश कर देता है. इसलिए शीत में शीत वायु का प्रकोप होता है. इसलिए तुषारपात के समय में हेमंत ऋतु में जब विशेष रूप से बर्फ गिरता हो तब स्निग्ध दैट इज घी, तेल, वसा आदि से युक्त अम्ल तथा लवण रस युक्त सॉल्टी एंड सोर भोज्य पदार्थों का एवं औदक जल में होने वाले प्राणियों का और अनुपदेश में पैदा होने वाले मेद्य प्राणियों के मांस का सेवन भी करने बोला है. बट फॉर द वेजिटेरियंस वी कैन यूज वेजिटेबल्स विच आर रिच इन फाइबर फूड एंड हार्ड टू डाइजेस्ट. मनुष्य बिलाशी बिल में निवास करने वाले गोदा आदि तथा प्रसह गोकर पशु पक्षियों के मृत मांस दैट इज भुना हुआ कबाब या शूल पक्व मांस का सेवन करें. दैट इज फॉर द नॉन वेजिटेरियंस. एंड मदिरा या शीदु इज द इक्षु रस से तैयार हुए हुए शराब तथा मधु का अनुपान के रूप में प्रयोग करना हितकर बोला है इन हेमंत ऋतु. हेमंत ऋतु में गोरस, इक्षु विकार, चीनी, गुड़, खांड आदि, वसा, तैल, नए चावलों का भात और उष्ण जल का सेवन करने वाले पुरुषों का आयु क्षीण नहीं होता. उनका बल की वृद्धि होगी, आयु की भी वृद्धि होती है. हेमंत ऋतु में कुछ परिचर्याएं बताए जो दिनचर्या में इस्तेमाल करें, जैसे अभ्यंग तेल की मालिश करना शरीर में, उपटन लगाना उत्सदन और सिर में तेल निषेवन, तैल अद्र स्वरूप शिरोधरा आदि का कर्म करने बोला है. स्वेदन करना, भाप का इस्तेमाल करना, गर्म पानी का इस्तेमाल करना, धूप का सेवन करना, सनलाइट दैट इज उष्ण भूमि गृह तथा उष्ण गर्भगृह में निवास करना. A room should maintain a temperature which is equilibrium to body temperature. शीतकाल में चारों ओर से ढका हुआ यान वाहन शयन कक्ष में बैठने के स्थान का सेवन करना चाहिए. A room should be kept closed due to शीतकाल. प्रवार ओढ़ने के कंबल, राजी आदि, आजीन व्याघ्र मृग आदि का चर्म, कौशेय रेशमी वस्त्र, प्रवेणी कुतक चित्रित रंग बिरंग कंबल आदि वस्त्र बिछाए हुए शयन आदि का सेवन करना हितकर है. भारी तथा गर्म वस्त्रों को धारण करने वाला, सदा अगुरु का गाढ़ा लेप शरीर पर लगाया हुआ पुरुष
बिस्तर पर संपुष्ट अंगों तथा विशाल स्तनों वाली अगुरु चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप की हुई नारी का आलिंगन कर मदमस्त पुरुष शयन करे। मीन्स इन दिस ऋतु मैथुन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सहवास के लिए अच्छा ऋतु माना गया है। एंड शीतकाल में यथेच्छ मैथुन का निषेवन कर सकते हैं। शीतकाल के आने पर वातवर्धक तथा लघु अन्नपान, प्रवात हवा के प्रबल झोंके के सामने रहने आदि का सेवन करने से और अल्प भोजन तथा उद्मंत जल में घुले हुए सत्तू का सेवन को वर्जित बोला है, क्योंकि इससे वात की प्रकोपिति होकर वात के व्याधि जैसे पेन, चर्म का फटना इत्यादि का रोग होने की संभावनाएं रहती है। इसके लिए इस तरीके से यहाँ पे अपन हेमंत ऋतुचर्या के बारे में डिटेल बताए हैं और इसका आप अनुसरण करके आरोग्य हितकर रहेंगे, इसका मैं आशा करता हूँ। और यहाँ पे विसर्ग काल का भी इस ऋतु से अंत होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आधान काल शिशिर ऋतु के प्रारंभ से। थैंक यू टू ऑल। नमस्ते।